کہ اگر کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ آتے ہیں آپ ان کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی پارٹی جوائن کریں جس کو وہ الیکشن سے پہلے جوائن نہیں کرنا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑا نا الیکشن. آپ اب ان کو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں یہ ناپسند تھی پارٹی, تم اس میں اس لیے نہیں گئے, لیکن اب الیکشن کے بعد ضرور ایک ایسی پارٹی میں جاؤ. سو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ پارٹیاں جو شاید معاشرے میں کچھ مقام رکھتی ہیں لیکن ان کے پاس دولت مند امیدوار نہیں ہے. الیکشن از اے ویری ایکسپینسو بزنس, جو بھی ہم کہہ لیں, ناٹ ایوری بڈی کین کنٹیسٹ. تو وہ لوگ اسمبلی میں آ کے وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ مزدور کسان پارٹی کو ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں اس کی نمائندگی ہو. یہ خود تو سیٹیں نہیں جیت سکی تھی, ہم سارے آ گئے ہیں اور ہم اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو وچ کانسٹیٹیوشنل پرنسپل از وائلیٹڈ بائی دیٹ. سو یہ ہماری آپ کے سامنے بحث تھی جو آپ نے نہیں مانی. وہ تو آپ نے نہیں کیا نا, نہیں مانی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. سو آپ نے کہا کہ نہیں, یو ہیو ٹو جوائن اے پارٹی ود جسٹ ون ممبر. وہ کوئی نواب ہے, اس نے اپنے نام سے پارٹی بنائی ہوئی ہے لیکن وہ چونکہ آ گیا ہے اسمبلی میں تو اس کو آپ جوائن کر لیں تو پھر آپ کو ہو گئی. آپ نے سوال پوچھا تھا مجھ سے کہ وہ باپ رائٹ اور ناٹ. آپ نے مزدور کسان پارٹی کو تو جوائن نہیں کیا. سر ہم نے تقریباً اسی کو جوائن کیا, بٹ بہرحال یہ ایک پوزیشن تھی, یہ مزدور کسان ہی ہے. اگر آپ صاحب زیادہ حامد بیٹھے ہیں آپ کا ٹائم نکل رہا ہے. سر اوکے سر, اب اس سارے میں سوال یہ تھا کہ وائلیشن کیا ہوئی. سو 51(6)(d) کی امپلیمنٹیشن میں وائلیشن یہ ہوئی کہ ایک پارٹی کو اس کی مرضی کے خلاف ریکگنائز نہیں کیا گیا اور اس کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا گیا. یہ ہوئی خرابی یہاں پہ. And this comes out of the explanation to Rule 94. اس کے بعد آپ جو بھی کہہ لیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے وہ بھی کر سکتے تھے, but there is an underlying defect here, an underlying deviation. Based on that deviation, the ROs declared us independent, the election commission finally, all 5 members sitting there declared us as independents, and the election therefore on the 8th of February resulted in this very large number of independents. About on that day 93 تھے جو independent کے طور پہ سامنے آئے. یہ Gaur Khan and Sabzada Hamid has also not joined any other party. He's also still there as an independent. So there were 13 people plus these 80. ان 13 میں کچھ وہ تھے جن کو بعد میں آپ تیری کاؤنٹنگ میں ڈی سیٹ کر دیا. سو ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل 6-7 باقی بچ گئے. وہ 6-7 اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں ایز انڈیپینڈنٹس, اینڈ 80 whose record was produced by the election commission before the court as independents or persons declared independent on the 9th of February who had joined the SIC within that 3-day window, ان کا ریکارڈ سامنے آیا. اس ریکارڈ کی بنیاد پہ 3 طرح کے فیصلے ہوئے. ایک فیصلہ یہ ہوا کہ جس کسی نے اپنے کسی بھی نامینیشن پیپر میں یا جو فارم فائل ہوتا ہے انڈر سیکشن 66 اس میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہے تو اس کو پی ٹی آئی فوراً مان لیا جائے. نتھنگ مور نیڈس ٹو بی ڈن. دیٹ واز دی ڈیسیژن. راجد صاحب, یہ صاحبزادہ صاحب وائی ہی چوز ٹو کنٹیسٹ الیکشن انڈیپینڈنٹلی؟ He did not choose to. انہوں نے جو پیپر فائل کیا وہ پروڈیوس ہوا تھا ادھر. He filed SIC in alliance with PTI. نان الائنس نہ لکھتے, اپنی پارٹی لکھ دیتے. الائنس تھی نا ہماری, آپ سپورٹ کر دیتے, آپ اپنے لوگوں کو. جی وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی تھی ہماری, ایک الائنس تو پہلے سے چل رہی تھی. پھر بات کہیں اور نکل جائے گا. چل میں اس میں نہیں جاتا. اگر الائنس تھی تو اس کا مطلب تھا وہ پراپرلی اس نے پارٹی دو پارٹیز کے ساتھ جوائنٹلی انہوں نے الیکشن لڑا. اگر الیکشن جوائنٹلی لڑا تو حامد رضا موجود تھے, پارٹی موجود تھی, باقی لوگوں نے باقی لوگ ساتھ شامل ہو گئے, تو اس کا مطلب پراپرلی شامل ہو گئے. لیکن 13 ممبر کہتے ہیں کہ نہیں, دے آر ناٹ انٹائٹلڈ. پھر تو آپ کو ریویو فائل کرنی چاہیے. سر میں عرض کرتا ہوں. سو وہ جب آئے ان کو بھی چونکہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, یہ بھی ایک ہو سکتا تھا کہ صاحبزادہ حامد کو SIC مان لیا جاتا بالکل, اور ہم نے SIC کو چونکہ جوائن کیا ہے, SIC کا چیئرمین الیکٹڈ موجود تھا پارلیمنٹ میں, تو یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی. joining a party with at least one member in the assembly. SIC کے وکیل کہتے ہیں کہ ججمنٹ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں جو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا بہت اچھا کیا. نہیں سر, میں اب کہتے ہیں ہم تو وہ واپس بھی نہیں چاہتے. وہ سر اب نہیں, ہم ایسا نہیں کہہ رہے سر. اب ایک سچویشن ہے جو اس ججمنٹ نے ہم سمجھتے ہیں لافلی کریٹ کی ہے. اس ججمنٹ نے حقیقت کو دیکھا ہے, یہ تمام پردے چاک کیے ہیں, ان کا بھی ایکچولی تو یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے, یہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے. یہ باتیں کافی ڈسکس ہو گئی. سو اس لیے سر میں اب یہ آ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب بات مانی نا سر, آپ نے مانی, آپ نے کہا میں 39 کو قبول کرتا ہوں ایز پی ٹی آئی. نتھنگ مور نیڈس ٹو بی ڈن بیکاز دس از دا ریالٹی آف دا سچویشن. کل جو آپ نے اپنی ججمنٹ کا پیرا مجھے حکم دیا تھا پڑھنے کو, that is very clear. So your lordship has also accepted that there were peculiar circumstances which resulted in these 39 being declared independent. And Raja sir, what about the amendment made in the constitution through the judgment of this court? کوئی amendment نہیں ہوئی. وہ 3 days کو 15 days کر. جی میں عرض کروں, یہ ایک سوال آیا تھا, نہیں کیا. دیکھیں
जजमेंट ने ये कहा है, ये नहीं कहा कि जो 3 दिन का वक्त था फॉर ज्वाइनिंग अ पार्टी उसको हम 15 दिन कर रहे हैं, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों को तसव्वुर किया जाएगा कि ये शुरू से ही पीटीआई थे, थ्रू आउट पीटीआई थे, इनको कोई पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। सो वर्ड्स डिफरेंट थे। नहीं से पढ़ ले, मैंने कल इसीलिए पैरा 96 पढ़ा था। दे नेवर सेड कि दे आर हियर बाय, उनको कंफर्मेशन के लिए कहा, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कहा। अगर ये कहा होता ना कि आप 15 दिन में ज्वाइन कर लें पार्टी, दिस वाज द क्वेश्चन पोज्ड बाय माय लॉर्ड नईम अख्तर साहब yesterday, and I read paragraph 96 of the judgment to show कि ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन की लिमिट को 15 दिन कर दिया गया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सेक्शन 66 के तहत कौन होता है एक पार्टी का उम्मीदवार। पार्टी का उम्मीदवार वो होता है जो एक सर्टिफिकेट देता है कि मैं इस पार्टी का उम्मीदवार हूं, और उस सर्टिफिकेट को वो पार्टी कबूल कर लेती है। आप लोगों के केस में चूंकि झंझलाट थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन थी, ये काम नहीं हो सका, टिकट जाम ने दिए, वो वापस कर दिए गए, ये रिकॉर्ड भी सामने आ गया था इन माय केस in particular. So the court said, look, there is this fog of events. इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि जो पार्टी से वाबस्तगी का तरीका आइन में दिया हुआ है या कानून में दिया हुआ है सेक्शन 66 में, उसको फॉलो किया जाए। आप अपना एफिडेविट दें और पार्टी अगर उस एफिडेविट को कबूल कर लेती है तो आपको पीटीआई तस्वुर किया जाएगा 8 फरवरी को। So ये नहीं कहा कि अब आप ज्वाइन करें पीटीआई, बिल्कुल नहीं कहा। अगर ये कहा होता कि आप ज्वाइन करें पीटीआई, देन माय लेडीज ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन कंप्लीटली करेक्ट कि 3 दिन की मुद्दत को आपने 15 दिन कैसे कर दिया। ये नहीं हुआ। दे सिंपली गेव टाइम फॉर एफर्मेशन ऑफ। मान लेते हैं आपके इस प्रोपोजिशन का मान लेते हैं कि ऐसा है, लेकिन उन्होंने तो ज्वाइन उस पार्टी को किया ना, उन्होंने यही भी कहा ना। फर्स्ट की डिक्लेरेशन आ जाती है, फर्स्ट की डिक्लेरेशन आ जाती है, तो फिर क्या होगा? सर 96 पैरे में उन्होंने 2 बातें की ना। उन्होंने ये कहा कि ये जो ज्वाइन करना था एसआईसी को, ये वॉइड है, इसलिए उन्होंने ये देखा, इस चीज का बहुत जायजा लिया कि इन लोगों ने एसआईसी को ज्वाइन किया हुआ है इन तमाम 80 के 80 में। जी आपने भी नहीं कहा था ना एसआईसी। सर ये फाइंडिंग दे दी ना कोर्ट ने। सर इसलिए मैं ठीक हो गया वो। सर 187 और 184 में ये चीजें अहम नहीं होती कि किसने क्या आर्ग्यू किया। कोर्ट ने रियलिटी देखकर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना है। अब काइंडली सी, ये जो पैरा 96 कल मैंने पढ़ा था, इसका जो आखिरी सब पैरा है, और इससे पहले भी देयर आर पैराग्राफ्स इन दिस जजमेंट इन व्हिच दे हैव सेड that the joining by these 80 of SIC was a void event. SIC को ये ज्वाइन कर ही नहीं सकते थे। They've given a finding कि उन 3 दिनों में आप ऐसी पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी कम से कम 1 सीट मौजूद हो। जब ऐसी पार्टी नहीं थी SIC, इलेक्शन कमीशन के बकौल, इलेक्शन कमीशन ने चूंकि हामिद रजा को भी इंडिपेंडेंट करार दिया हुआ था, therefore they've held कि you joined a party that you could not have joined. पाबंदी क्या लगाई जा सकती है किसी पे? 51 तो ये अब तो हम देख रहे हैं किसी पे पाबंदी लगाई जा सकती है? आप किसी, सपोज एक पार्टी का इलेक्टेड मेंबर है जी, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो अब ये फैसला आ गया ना। एक ही रिस्ट्रिक्शन है 63A में, तो मैं वो डी सीट हो जाएगा, दैट्स ऑल। वो भी उस वक्त डी सीट होगा कि अगर पार्टी है रेफरेंस भिजवा। सर ये किसी और केस में रिस्ट्रिक्शन अपॉन अ पर्सन टू। सर ये तो किसी और केस में देखेंगे ना। ये तो यही क्वेश्चन यही कि 51 में तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर उन्होंने, सर आप बहुत सी चीजें जजमेंट के जरिए एलैबोरेट करते हैं ना। आपने ये कहा कि ये जो 3 दिन की ज्वाइनिंग थी, ये किसी ऐसी पार्टी की होनी चाहिए थी विच हैड अ सीट। इन्होंने चूंकि इसकी कंप्लायंस करने के लिए एसआईसी को ज्वाइन किया, देयरफॉर दिस ज्वाइनिंग इज वॉइड। इस ज्वाइनिंग को हम कंसिडर ही नहीं करते। इस तरह दे overcame the act of joining. अब ये कर दिया उन्होंने। Now the question is on what ground will this be overridden in review? क्या आप रिव्यू में ये कहेंगे कि उनकी ये जो फाइंडिंग है कि ये जो इन 80 लोगों ने ज्वाइन किया इस गलत फहमी के तहत कि वो इंडिपेंडेंट हैं एसआईसी को, और जिसको इस जजमेंट ने 8 मेंबर बेंच जजमेंट ने कह दिया या इस कोर्ट की जजमेंट ने कह दिया कि दिस एक्शन वाज कोर्स्ड एंड वॉइड, दे कुड नॉट हैव जॉइन्ड दिस पार्टी। एक फाइंडिंग दे दी। अब इस फाइंडिंग को ओवरटर्न करने का क्या तरीका है आपके पास इन द रिव्यू जुरिस्डिक्शन? यू हैड टू आइदर से कि देयर इज सम प्रोविजन ऑफ द लॉ दैट दे ओवरलुक्ड। उन्होंने कुछ ओवरलुक नहीं किया। 51(6) को बार बार उन्होंने पढ़ा, रिप्रोड्यूस किया है। उन्होंने सारे जो रिव्यू के 2 ग्राउंड्स है ना जी, मिस्टेक और एरर, which has caused injustice. सर injustice जरूरी है सर, सिर्फ मिस्टेक और एरर नहीं है ग्राउंड। आपने अपनी हर जजमेंट में ये कहा है कि even erroneous judgments will not be reviewed if they have not resulted in injustice. So review is done only to cleanse the judgment of injustice.
So if there is no injustice, then even erroneous judgments will be upheld. Judgments which have looked at the law and maybe have come to a wrong conclusion. But as long as they have decided a matter solemnly, then that is the end of it. This is the Supreme Court of Pakistan. They have decided it. ये भी तो डिबेट है, sometimes judgments are act of violence. Act of Violence. सर हम बहुत वायलेंस फेस कर रहे हैं. जजमेंट्स वी सीक एज अ रेफ्यूज. इसलिए कल जो मैं भी ढूंढ रहा था वो कार्टून मुझे मिले जनाब ने जिसका जिक्र किया था. जो मुझे कार्टून जो मिला सर वो उसमें तो एक बंदा बंधा हुआ है, उसको दूसरा बंदा मार रहा है, लेकिन रेफरी भी मार रहा है साथ. तो वो मैंने तल्फ कर दिया. वो कार्टून मुझे पसंद नहीं आया सर. ये 2018 में था. शेर आपके अगेंस्ट जाता है. सर नहीं, वो शेर बिल्कुल एक आपके अपनों ने आपके साथ ये किया. नहीं सर, अपनों ने तो नहीं किया. ये तो जो हुआ ये तो एक निजाम हमारे सामने खड़ा था, इलेक्शन कमीशन था. मैं फिर से एक रिपीटिशन बात करता हूँ. ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने साथ खुद करती हैं. नहीं सर, मुझका भी हर दौर में मैं सर बाहर दूंगा उसका जवाब. अपने साथ खुद करते. सर मेरा एक व्यू है इसके ऊपर, मेरा एक व्यू है, मैं बाहर बयान करूंगा. एनीवे सर, तो ये मामला ये है कि जो ज्वाइनिंग की बात थी इसको इस कोर्ट ने एग्जामिन किया है. And this court has come to the conclusion that this joining does not stand in the way of our declaring that these 39 are PTI. और आपने भी ये बात मानी, my lord, Justice Mandukhed. So जिन 39 को आपने कहा है कि वो PTI हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया था और आपने भी उस ज्वाइनिंग को एक तरह से non-eth करार दिया है कि this is no joining in the eye of the law. Therefore, they should be deemed PTI and they should be treated as. मेरा अपने लॉजिक है उसमें. ठीक है, बिल्कुल यही था कि चूंकि अगर वो कॉन्शियसली करते तो 63A में आ जाते हैं. बिल्कुल ठीक बात. इसलिए उन्होंने so therefore सर वो void है, वो अमल और वो सारा अमल इन peculiar circumstances में हुआ. कोई ये लोग 80 लोग इस नियत से नहीं आए थे कि हमने जरूर कोई और पार्टी ज्वाइन करनी है. They had fought as PTI. मैंने दिखाया आपको. रिपीटिशन हो रही है जी रिपीटेशन नहीं करते. so सर मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, क्योंकि ये सवाल बार बार आया कि भी इन्होंने तो ज्वाइन कर लिया है किसी और पार्टी को. फिर एक सवाल ये आया कि टाइमलाइन वायलेट हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन की. इसलिए मुझे ये जवाब देना पड़ा कि इन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन जो किया था SIC को, उसको आपने वॉइड डिक्लेयर कर दिया आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन. और जो इन्होंने एफिडेविट दिए और जिनको PTI ने एक्सेप्ट किया, दैट इज नॉट ज्वाइनिंग अ पार्टी. That is simply affirming the situation that actually existed on the 8th of February. So इसलिए कोई टाइमलाइन आइन की वायलेट नहीं हुई. ये गुजारिश थी. अब सर जो रिव्यू का मैंने नोट आपके सामने रखा है, इसमें देखने अगर सपोज 2, 4, 5, 10 लोग वो एफिडेविट नहीं लाते हैं मिसाल के तौर, तो क्या वो फिर SIC में रहेंगे या वहां से तो जजमेंट इजाजत दे दी ना, वो तो जजमेंट से निकाल दिया उनको. सर ऐसा हुआ नहीं, सब के सब ले आए. वैसे पूछ रहा हूँ. तो मुझे नहीं पता उस मफरूजे का क्या जवाब होगा, लेकिन अगर वो ना लाते एफिडेविट तो फिर वो इंडिपेंडेंट तसव्वुर, इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट वो फिर इंडिपेंडेंट तसव्वुर होते, क्योंकि SIC की ज्वाइनिंग को तो इस जजमेंट ने कह दिया कि वो नलिटी है. उनकी ज्वाइनिंग को तसव्वुर नहीं किया जाएगा. रिजॉइन कर. आप कोई मीटिंग करते थे कोई भी स्टेप लेने से पहले, या जिसकी जो मर्जी थी वही कर रहा था? नहीं, कुछ मीटिंग्स होती थी लेकिन अफरा तफरी का आलम था. हम में से अक्सर अंडरग्राउंड थे, जेलों में थे. मैं नहीं उस तरफ जाना चाहता. आपको अगर पता चले कि इन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, ये आग और खून का दरिया था. मैं लिखूंगा, मैंने डायरी लिखी, आई विल पब्लिश इट वन डे. ये उसमें बहुत सी आपके सवालों के जवाब आएंगे सर कि हम ये इलेक्शन लड़ कैसे रहे थे. आई डोंट वांट टू गो देयर. सर ये जो नोट मैंने दिया है, इसमें कल जो जजमेंट मैंने पढ़ी थी उसके अलावा जो जजमेंट्स मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, कुछ इस पेपर बुक में है. बाइंडर जो मैंने दिया, मैं आई जस्ट पॉइंट आउट द पेजेस. तो ये जजमेंट है इस बाइंडर में, सैयद वजीउल हसन PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 801. In this binder, this is at serial number 5. I'll not read it, but I'll just point to the paragraphs. Paras 17 and 18 may kindly be noted. What they've held in paragraphs 17 and 18 is that even an erroneous view will not be reviewed unless gross injustice has occurred. So injustice has to be established by the other side. Then also in this paper book is the case of Muhammad Siddiqul Farooq, 2010 SCMR 198. और इसमें in the paper book, so these are pages 118. इसमें पैरा नंबर somehow नहीं थे इस जजमेंट में. पेपर बुक में pages 118, then 127.
then 136, सर अगर ये नोट कर लें, to 139. इन्होंने कहा कि ये दिखाना होगा for review that something was overlooked. And if it had not been overlooked, जैसे जनाब ने कहा पूरे इंक्यूरियम कि कोई चीज देखी ही नहीं सिरे से, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ थी, 5B का जैसे जिक्र कल आया एक केस में कि डायरेक्टली एप्लीकेबल प्रोविजन थी, उसको देखा ही नहीं और फैसला कर दिया. Something has been overlooked, and if it was not overlooked, the result would have been different. This is the ground. So merely overlooking is also not sufficient. They would have to establish कि फला प्रोविजन थी, उसको ओवरलुक किया गया है, वो कोर्ट के सामने थी नहीं शायद, और अगर वो होती तो फैसला ये ना होता, कुछ और होता. So these are the basic principles on which everything else is built. और इस नोट में फिर आपने ये सब प्रिंसिपल समराइज किए हैं जो मैंने आपको दिए in this judgment of the recent judgment, the PTD judgment that I have placed at number 1 in my note on the review jurisdiction, authored by Justice Muhammad Ali Mazhar. ये सब बातें उसमें आपने reproduce की हैं. जी. So इसमें आपने, if I may, for the sake of brevity and condensing, 3 लाइनों में प्रिंसिपल लिखा है जस्टिस मजहर साहब ने, और उसके बाद जो केस लॉ था पुराना वो नीचे दे दिया. एंड दिस इज इन पैराग्राफ 11 ऑफ 2023 PTD 964. But this judgment has not purported to deviate from the established jurisprudence. It is simply enunciating, condensing the existing jurisprudence. So no new ground is being broken here. Very consciously this judgment says this is our established jurisprudence. So the established jurisprudence includes the 3 cases I have just read. The case of Abdul Ghaffar, PLD 98, Supreme Court 363, Sayyid Wajiul Hassan, PLD 2004, Supreme Court 801, Siddiqul Farooq 2010, SCMR 198, and then all the judgments given in this note. Yes, already you have provided. ये आपने दे दिया. फिर ये 3 जजमेंट्स तो इस पेपर बुक में थी, बाकी मैंने आपको इस नोट में दे दी हैं. वो इस पेपर बुक में सारी नहीं हैं, but there are other judgments in this note which my lords may kindly look at. Then, sir, I go to the scope of 184.3. ये जनाब के सामने है जी, नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 184.3. ओहो सर, ये आज नहीं खत्म हो सकेगा. मेरा सबसे इंपॉर्टेंट केस खुर्शीद भिंडर का केस है. सारे सवाल को वारंटो वाले, आर्टिकल 225 वाले आर आंसर्ड इन खुर्शीद भिंडर्स जजमेंट. मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा. इट विल बी ग्रेव फेलियर